శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట
నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருப்பதி திருமலை நின்று நேரலையாக ஒளிபரப்பும் ஸ்ரீ மலையப்பனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையில் பக்தி ஸ்ரத்தையோடு கண்டு அனுபவிக்க அமர்ந்திருக்கும் பக்தர்களை இரு கரங்கள் கூப்பி வரவேற்கிறது. சுபதினமான இன்று பிறந்த நாள், திருமண நாள் என்று கொண்டாடும் பக்தர்களை பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ வாழ்வாங்கு வாழ செங்கதிரு மொழியனென்கோ திருமருமார்வனென்கோ சங்கு சக்கரத்தனென்கோ சாதி மாணிக்கமே என்று சாதிக்க மாணிக்கமான திரு வெங்கடவனின் திருத்தாள் பணிந்து பிரார்த்திக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் இனிதே வாழ்த்தி வரவேற்கிறது. தான் உகந்த ஊர் எல்லாம் தன் தாள் பணிந்து என்று திருமங்கை ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தை போல அடியார்களின் திருவுள்ள கருத்தை உணர்ந்த எம்பெருமான் அந்த அடியார்களை, அன்பர்களை, பக்தர்களை காக்கும் அருள் குடிலாக திவ்ய தேசங்கள் இந்த உள்ளது. திவ்ய அர்ச்சை திருவேணியில் அவ்வோ திவ்ய திருக்கல்யாண உற்சவம் சற்று அனுபவிப்போம். ब्रह्मेश वन्द्यवरदम् अमृतं भजामि भृग्वत्रिकस्य बमरीजपथ्ये स्थित्वा सने कुसमये समधीरयन्ताम्
श्रीशास्त्रधारमखिलं विखणो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विघ्नसे नमः भृगुमरीज अत्रिकस्य मेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्वृतवक्त्राद्या पारिषत्या परशरं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये सर्वतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तरीकृतं सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि स्तण्डिल परिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाजनाक्यङ्क्रम करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यक्रमणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये ओं धाराजतप्तचिरमानशेषधरत्तरित्य परिपूरितेष अपो विगृह्णन् प्रतिपादकिष्ये कृणोमि दत्ताकं सुचरकं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतम्वर्णये सहस्रं यज्ञया पाजापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा मञ्जिन्नमृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि तक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्तामृतराज नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कटिक्रसमन्वितं जगापदं सङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामकमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्महितोऽनुशुम्भो वैराजन्ते ध्वदनधत्तां प्रयिष्यामि देशो विपधानामनादर्यामे सस्तान्दनितान् दधात् पद्माकारमण्डले बोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभागिनमावाहयामि तत्क्षणे सूत्रपतिमावाहयामि वामेटिकामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यजा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा न दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो मृदानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादरं तद्विप्राजो विपन्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारा सते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीदोमव्यशम् यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरोमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्त एवं विशेषविशिष्टायामस्यां सुभद्रौ पुण्याहं
ऋस्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति रध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्नो अस्ते अनुराधानः हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेमसृतः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथादर महेरणाय चक्षसे यो पश्यमतमोरसस्तस्य भारगते हनः उशतीर्व मातरः तस्मारङ्गमावमो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता सपुनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनमोधिया पुनन्त विश्व आयमः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पराहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतोकुम्रणे जित्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ते भक्मेस्तनवो वीतपृष्ठाः तजामदन्तस्तमार्त्येषे वयग्दुस्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् वादः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः हरदावनी जिग्नये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवम्नभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानि रध्येति वृषभिः सम्भृतकं रसम् सर्वगं सपूतमस्यादि सुदिनं मातरिश्वन पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः यमल्लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमराभिपुनातमा जातवेदा मूर्जगिन्त्यापुनात् तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभेषणं शन्नो अस्तद्पदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्पजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्धायां दिशि दिग्नः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तव कृतं वस्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयोरथाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपाद्रघ्याचमनीं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च விஸ்வக்சேனர் ஆராதனை புண்ணியாக வச்சனம் என்று ஆன பிற்பாடு இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு தேவையான பாலிகைகளில் தீர்த்தத்தை சேர்க்க இருக்கின்றார். மேலே எம்பெருமான் மலையப்பரின் திருக்கல்யாண குணத்தை ஆழ்வார்களின் திருவாக்கின் மூலம் நாம் சற்று அனுபவிப்போம். இக்கலியுகத்தில் அடியார்களை, அன்பர்களை, பக்தர்களை காக்கும் அருள் குடில்களாக திவ்ய தேசங்கள் உள்ளது. திவ்ய தேசங்களில் திவ்ய ஆர்ச்சை திருமேனியில் அவ்வோ திவ்ய தேசங்களில் உறைந்து நித்தியமாக அருள்பாலிக்கு எழுந்தருளியிருக்கும் சிவபதியான பகவான் என்று பல திவ்ய தேசங்கள் இந்த உலகில் உள்ளன. அவைகளில் எல்லாம் தனிச்சிறப்பும் புகழும் பெற்று திகழும் ஒப்பற்ற பதியே திவ்ய தலமே திருவேங்கடம் என்பதை இந்த உலகம், பக்த உலகம் நன்கு அறியும். இக்கருத்தை கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பநாட்டாழ்வார் வடசொற்கும் தென்சொற்கும் வரம்பிற்கும் நான்மறையும் மற்றை நூலும் இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லையதாய் நல்துறக்கும் ஈராய் என்று திருப்பதியே வெங்கடம் என்று மங்கள திவ்ய தலம் இந்த திருப்பதி திருவேங்கடம் இந்த திவ்யதலத்தின் உயர்வினை கவி ஏற்று நன்றாக எடுத்து இயம்பியுள்ளார். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி பாரிகைக்கு உரிய அனைத்து தானியங்களை சேர்த்து அவற்றுக்கு
உள்ள கிரமங்களை செய்வித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். வடமுக வேங்கடத்து மன்னும் குடநயந்த கூத்தனாய் நின்றான் குறைக்கிழலை கூறுவதே நாத்தன்னால் உள்ள நலம் என்று மூன்றாம் திருவந்தாதியில் பேயாழ்வார் சாதித்தருளியுள்ளதை திருவேங்கடத்தின் ஏற்றத்தை பேயாழ்வார் அருளி செய்த பாசுரத்தில் பாரத போரில் அர்ஜுனின் இரவித்தேரை ஓட்டிய பெருமான் கண்ணன். இப்போது அதாவது இந்த பேயாழ்வார் சாதித்த பாசுரத்தின் பொருள் சற்று உள்ளடக்கமாக சேவிப்போம். தேரை ஓட்டிய பெருமான் கண்ணன். மேலே இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்கு உரிய கிரமத்தை ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைமாஹிக மகோத்சவாக்கியக்ரமணி பிரதிசரபந்தன தேவனாராதனங் கரிஷ்யே. ஓம் யமர்ப்பயந்தி மனயோ ஹவிர்யோஜோ ஹிடானிர்விவிதா விராஜன்னே தம்மயதோஷாயஸ்யானநாக்னவிபினானிபதந்தே. ஓம் சேஷமாவாஹயாமி சஹஸ்ரீர்ஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி. ரக்ஷாசூத்திர அதிஷ்டான தேவதாभ्यो நமः. சேஷாய நமः. ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, ஆஜமனியம் சமர்ப்பயாமி, புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி, குடோபஹாரம் நிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபచారాన్ సమర్పయామి. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமீதாமஸ்வினா பக ஸ்வஸ்தி தேவ்யதீதர நர்வணாः ஸ்வஸ்தி பூஷா அசூரோதராதன ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருथिवी சுஜேதுனா ஸ்வஸ்தயே வாயும் பிரபாமஹே சோமம் ஸ்வஸ்தி பவானஸ்ய யஸ்பதிः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तनः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसोरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं महासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिरे कृधि स्वस्ति बन्धामनोजरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनरतथदाज्ञादाजानरा सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्राजकं समत्सु बृहत्यशोनावामिवारोहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं जस्वस्त्यात्रेयं वनाधाजदार्क्ष्यं प्रियादमानिशरणं प्रमध्ये स्वस्तिजं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभाम्. மேலே எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் கங்கணத்தை அர்ச்சக சுவாமி வைகானச ஆகமம் முறைப்படி அதற்குரிய கர்மங்களை செய்வித்து நம்மையும் காணச் செய்கின்றார். மேலே பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்கும் முன்பு பேயாழ்வார் சாதித்த அந்த பாசுரத்தின் பொருள் சற்றே சேவிப்போம். பேயாழ்வார் ஒளி செய்த பாசுரத்தாலே பாரத போரில் அர்ஜுனனின் இரவித்தேரை ஓட்டிய பெருமான் கண்ணன் இப்போது வடதிசைக்கு முக்கியமான திருவேங்கடத்தில் திவ்யவாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதே ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக உள்ளது. அதுவும் உண்மைதானே. திருவேங்கடவரின் திவ்ய திருவடி இணைகளை துதிப்பதே படைத்ததான பக்தர்கள் பெறக்கூடிய நன்மையாகின்றது என்று ஆழ்வார் ஸ்ரீ வேங்கடவனின் ஏற்றத்தை சாதித்தருளியுள்ளார். அதாவது படைத்த நன்மையை பெறுவது என்பது என்ன? அந்த நாவினால் எம்பெருமான் திருநாமத்தை சொல்ல வேண்டுமே ஒழிய மற்ற எந்த விதத்திலையும் எந்த விதமான வார்த்தைகளையும் பேசக்கூடாது என்பதே ஆன்றோர்களின் கருத்தாக உள்ளது. நல்லதையே பேச வேண்டும், மங்கள வார்த்தைகளையே சொல்ல வேண்டும். அதற்கு முந்தமாக அந்த மங்கள வார்த்தைகள் நிலை பெற்று நீடு நின்று நமக்கு வாழ்வு அளிக்க எம்பெருமான் திருநாமத்தை சொல்லி மங்கள வார்த்தைகளையே சொல்ல வேண்டும், வேற எந்த வார்த்தைகளும் பேசக்கூடாது என்பதை ஆன்றோர்களின் உள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ளது. வணங்கும் இந்த எம்பெருமானை நினைந்து வணங்கும் பக்தர்களின் வினை கூட்டங்களாகிய நெருப்பை வேங்கடமே அணைத்து துன்புற்ற பக்தர்களை காத்து அணைத்துக் கொள்ளும். இக்கருத்தை ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் தானும் வினை சுடரையை நந்து வைக்கும் வெங்கடமே என்று அருளி செய்துள்ளார். ஆழ்வார்களின் அருள் செயல்களில் ஆழ்ந்து மூழ்கி எழுந்த அழகிய மணவாளதாசர் என்னும் பிள்ளை பெருமாளும் நோவினையும் நோயினையும் நோய் செய்வினையும் வீவினையும் தீர்த்தருளும் வேங்கடமே என்று அருளி செய்துள்ளார். இந்த திவ்ய தலத்தை குறித்து அனைத்து ஆழ்வார்களின் உள்ள கருத்தை பொதிந்த பொருளாக இருவரியிலே அமைத்துள்ளார் பிள்ளை பெருமாளையங்கார். இக்கருத்தை சுவாமி தேசிகனும் கடுவினையர் இருவினையும் கடியும் வெறுப்பு என்று உறுதிபட சாதித்தருளியுள்ளார். ஸ்ரீ வைகுந்த வாசிகளான நித்தியசூரிகள் நித்தியமாக தங்கள் அனுபவித்து போந்தது போராது என்று நித்திய சம்சாரிகளான நம்போல்வார் மீது ஸ்ரீ வெங்கடவாணனின் சௌலபிய குணத்தை காட்டும் அழகை தாங்களும் கண்டு களிக்க சுமந்து மாமலர் நீர் சுடர் தீபம் கொண்டு அமர்ந்து வானவரர் கோனொடும் நமன்றி எழும் திருவேங்கடமே என்று வேங்கடவனின் பெருமையை ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அனுபவித்த விதமே ஒரு ஒப்பற்ற ஏற்றத்தையும் தனி விதமும். அதனாலே இந்த எம்பெருமான் திருவடி வாரத்திலே நாம் படிந்து அனைத்து நன்மைகளும் பெற வேண்டும் என்று ஆச்சாரிய முக்கேன நாம், அதாவது இவ்விடத்தில் ஆச்சாரியன் அர்ச்சகரை நாம் பெற வேண்டும் என்பதே திருவுள்ள கருத்து.
இந்த ஏற்றத்தை நன்றாக தெளிவுபடுத்துகிறது. நித்திய சூரியர்களின் மனதில் திருவேங்கடவாணனின் எளிமையை காண வேண்டும் என்ற ஆவலை இம்மலையே தூண்டுகிறதாம் என்பதே ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வாரும் வேங்கடமே வானோர் மனச்சுடரை தூண்டும் மலை என்று சாதித்தருளியுள்ளார். நித்திய சூரிகள் தங்களுடைய இடம் இந்த திருவேங்கடம் என்று உரிமை பாராட்டக்கூடிய திவ்யதலமாக திருவேங்கடம் இன்று விளங்கு கொண்டிருக்கிறது என்று ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ளது. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி எம்பெருமானுக்கு கங்கணத்தை மங்களமாக, அதாவது திருக்கல்யாணத்திற்கு முன்னம் கங்கணத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிறார். இந்த கங்கணம் கட்டிக்கொள்வது நம்மை காக்க வேண்டும் என்று அவன் கங்கணத்தை கட்டி கொண்டிருக்கின்றான். அதுதானன்றோ இந்த கங்கணம் கட்டிக்கொள்வதை நாம் நன்றாக சேவிக்க முடிகிறது. நம்மை காக்க வேண்டும் என்றுதான் அவன் கட்டி கொண்டிருக்கிறான் கங்கணத்தை என்று இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். மேலே தொல்மாலை கேசவனை நாரணனை மாதவனை சொல்மாலை எப்போதும் சூட்டு என்கிறார் திருவிருத்தத்தில் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார். திருநாமங்களை சொல்லி ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசனின் திருவடி இணைகளில் எப்பொழுதும் நாம் பதிந்திருக்க வேண்டும். அந்த நா கொண்ட பயன் என்பது அதுதான் ஆழ்வார்களின் திருவுள்ள கருத்து. வேறு எந்த வார்த்தைகளையும் பேசக்கூடாது. அமங்கலமான சொற்களோ மற்றவர்களை துன்புறுத்தும் வார்த்தைகளோ சொல்லாது இருந்தாலே போதும். நாம் தனியாக சென்று கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும், பாப்பத்தை கழிக்க வேண்டும் என்பதே இல்லை. வீட்டில் இருந்தபடியே நாம் நன்றாக நினைத்தாலே அவன் நம்ம வேங்கடவாணன் நம்மை தேடி ஓடி வருவான். அவன் இருக்கும் இடமே திருவேங்கடம் அல்லவா? அவன் பக்தர்கள் இருக்கும் இடமே அந்த மனமே திருவேங்கடமாக எண்ணிக்கொண்டு உள்ள சுத்தமான உள்ளத்தையே அவன் மலையாக ஏற்றுக்கொண்டு அவன் அங்கே எழுந்தருளுவான் என்பது சத்தியம். அதுவே ஆழ்வார்களின் திருவாக்காக அமைகிறது. வெறுவாதாள் வாய்வெறிவி வெங்கடமே வெங்கடமே என்கின்றாளால் மறுவாளால் என் குடங்கால் வாழ்நெடுங்கண் துயில் மறந்தாள் வண்டார் கொண்டல் உருவானாள் வானவர் தம் உயிரானாள் ஒலி திரை நீர் பவ்வம் கொண்ட திருவாளன் என் மகளை செய்தனகள் எங்கனம் நான் சிந்திக்கேனே என்று ஒரு தாயார் தன் மகள் எப்படி எம்பெருமானை நினைந்து உருகின்றாள் என்ற தாய் பாசுரமாக இந்த பாசுரத்தை அமைத்திருக்கிறார் ஆழ்வார், நம்மாழ்வார். அதாவது இந்த திருமங்கை ஆழ்வார் மேலே பராங்குச நாயகியாக நம்மாழ்வாரும் பரகால நாயகியாகவும் திருமங்கை ஆழ்வார் இவ்விதமாக ஒரு 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 ஸ்திரீ பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பாசுரங்களை சாதித்தருளியுள்ளார். அதில் திருமங்கை ஆழ்வாரின் ஈரச் சொற்கள் திருவேங்கடவனை காணும் அவாவினால் திருமலையப்பனின் இருப்பிடமான திருவேங்கடத்தின், அதாவது இந்த தலத்தின் திருநாமத்தை சொன்னாலாவது தன்னை காண வருவானா என்று தாம் படும் பாட்டை தம் வாயால் எடுத்து சொல்லாது தன் தாயார் சொல்லாக சொல்லும் பாசுரம் பரகால நாயகியான ஆழ்வார். அப்படி ஏற்றமுடையது இந்த திருவேங்கடம் மலை. அவன் எழுந்திரளிருக்கும் அவன் திருவடி பிராட்டி திருவடியும் எம்பெருமான் திருவடியும் ஓடித்திருந்த அந்த மலையினாலே இந்த மலை என்ற ஏற்றம் பெற்ற இந்த மலை நினைத்தாலே போதுமானது. அத்தனை ஏற்றமுடையது இந்த திருவேங்கடமாமலை. திருவேங்கடம் திருவேங்கடம் என்று வாயை புலம்பினா இந்த மாதிரி இருக்கின்றாள் இந்த பரகால நாயகி. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி பூதேவி தாயாருக்கு இந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் மங்களகரமாக. ஓயாத அலைகள் சப்தமிடும் பார்க்கடலிலே பிறந்த மகாலட்சுமி பத்மாவதி தாயாரின் வல்லபனான ஸ்ரீ வெங்கடவனின் நினைப்பாலே தன் மகள் தவிக்கும், அதாவது தன் மகளை கண்டு அதாகில் பரகாலன் ஆகியை கண்டு தாயார் துக்கித்துப் போவதாக சொல்கிறாள். லக்ஷ்மி பத்தியான வேங்கடவாணனுக்கு பரகால நாயகியாம் ஆழ்வார் ஒரு பொருட்டாக இல்லையோ என்று தாயார் துக்கப்படுவதாக அமைந்துள்ள பாசுரம். தாயார் என்றால் பரகால நாயகியின் தாயார், ஆழ்வாரின் தாயார் இருப்பிடமாக அந்த இடத்தில் இருந்து பாசுரத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது மேலே திருமண கைங்கரியங்களை செய்விக்க அர்ச்சக சுவாமியும் கங்கணத்தை கட்டிக்கொண்டு நமக்காக மேலே இந்த திருமண கிரமங்களை செய்ய காத்திருக்கின்றார். அக்னி சமர்ப்பித்து திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு தேவையான கிரமங்களையும் இப்பொழுது ஆரம்பிக்க துவங்க இருக்கின்றார். இதை நன்றாக கண்கூடாக கண்டு பக்தர்கள் அவர்களின் மன குறைகளையோ வேண்டுதல்களையோ நன்றாக பூர்த்தி செய்யும்படி பிரார்த்தித்து மேலே தொடருவோம். शुद्धावृत्राणि दाशिनी शुद्धावृत्राणि चिग्रहे शुद्धोवाजं शिराससे
मह्यं यदन्त मम यान हव्याकोति सत्यामन सोमे अस्ते ये रोमानगाङ्गतवच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामे देवी ईश्वरमे ऋणकृणोत विश्वे देवास हवीरयत्थं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मानधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतजहसिञ्जतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रतीको कृतयो निरग्निकृते समिद्धो कृतमस्यान्नं घृतप्रशस्ताद्रितो वहन्ति घृतं पिबन् सहिताजिक्षदेवान् हदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतसृजो वेन आवह समुद्रया पपमास्य विष्टाशतश्चयो नमशतश्चिवः ॐ भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्मन्तवादकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तराते सादन्यं विदत्यकं दभेकं दस्त्रवनं योधराज तस्मै ॐ भू सोममावाहयामि ॐ भवज्ञाकमावाहयामि ॐ सवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेन मानोस्तु तप्तर्हीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ॐ प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयुक्तं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनधाभूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशुरस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवशब्दप्रसवनात् तच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रेपवो अग्रे गुमोग्रयं यज्ञं निगताग्रे यज्ञपतिन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मणप्रणीष्यामि गिरमानवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य प्रश्नेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः भूं प्रणया सोमापप्रणीष्यामि गिरमानवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य प्रश्नेयमानोऽस्ते इनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः भूं प्रणया को वप्रणितसमप्रणयत्पापो देवी प्रणयानि यज्ञं सकंसादयन्त्रः इदं वदन्ति कृतपट्टावदागं सहस्रपूषं यजमानेऽञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसममावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापते दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोभामि प्रजापते दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि वसुभ्यो दृष्टनोभामि मरुद्भ्यो दृष्टनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टनोभामि आपावपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे दृष्टनोभामि बृहस्पतये दृष्टनोभामि मित्रागे दृष्टनोभामि वरुणागे दृष्टनोभामि आदित्येभ्यो दृष्टनोभामि अस्मिभ्यां दृष्टनोभामि पूष्णे दृष्टनोभामि कक्षाय दृष्टनोभामि कक्षदेवतसोमागे दृष्टनोभामि औपासनयज्ञागे दृष्टनोभामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो दुष्टनिर्वदेवं सर्वदेवेभ्यो दृष्टनोभामि आद्यं तृप्रतिस्रगामि चरन्तप्रतिस्रगामि अग्नेत्योदरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रतिष्ठमृक्षप्रतिष्ठा अरातयः चित्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तादपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिथो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः इमामेकनिष्ठगाधेन वसन्त्वेका च शतञ्च सहस्रञ्च युतञ्च निगितञ्च प्रगितञ्च अर्पतञ्च जर्पतञ्च समुद्रश्च मध्यञ्चान्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्ठगाधेन वसन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः ऋतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विष्णुपणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदितेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा षष्टि शतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्तगिद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वचेतवर्तगिरास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्यामं भू स्वाहा भव स्वाहा वगुं सम स्वाहा
ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్థాః అనుమదేన్వమగ్స్థాః సరస్వతేన్వమగ్స్థాః దేవసవిడప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకిన్యక్రమణి ఔపాసనాగ్నో ఆఘారాంతే స్వరమంత్రాక్షరక్రియాదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాది షట్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవేతః ప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతనోగితో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానతధేపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतिगतो व्रतानि पस्महे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरान्तरग् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यमोजाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सव स्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः अनुमदेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसविडप्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలి కదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసమతి సంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్సచిహ్నం భజే స్వచ్చక్రశంఖం కటివరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రలంబసూత్రోత్ఫలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం
अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकदमे अप्तेजो वायुव्यागाच अहङ्कार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिरे ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकावते यशोपतेत्यष्टदेव परि विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्दिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकाल्लोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशान्मलपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारति किं पुरुषहारीरावृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकर्मणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रगभस्ति पुन्नाकगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्म निचायेत दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थिके शरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापादकादि समस्त दुरितक्षयार्दं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीबाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तनैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतनासेर्वर्षसहस्रावधानेनैकैक तिलावकर्षणक्रमेण सर्वरास्यवकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपणवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परं व्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनोमनीन्द्रमदानसारविर्भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सिंहचक्रशार्ङ्गकौमोदके नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानसभगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यादिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधरवण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवस्यवन आप्नुवान उर्ववेदलमञ्जारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि।
ऋग्यजुस्सामाधर्वणसकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगाऋषीं प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधजेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। கன்னிகா தானம் ஆன பிற்பாடு அர்ச்சக சுவாமி ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் வேங்கடவாணன் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருவாங்கல்யத்துக்கு உரிய ஆகம முறைப்படி கிரமங்களை செய்விக்க இருக்கின்றார். இது நன்றாக நாம் காணும்படியாக இருக்கிறது. இந்த திருமாங்கல்யத்தை நன்றாக பிரார்த்தித்து பக்தர்கள் அடியார்கள் தங்களின் அபிலாஷைகளை எண்ண அலைகளை பூர்த்தியாக்க வேண்டும் என்று திருவேங்கடவாணனின் அந்த பிராட்டி மகளின் திருவடிவாரத்தில் பிரார்த்தித்து மேலே ஸ்ரீனிவாசனின் பக்தர்கள் ரட்சகத்திற்கு அவன்றோ வலம்புரி சங்கையும் திருவாழியையும் திரண்ட தோளில் உடையவனாக இருக்கின்றான். அவன் உள்ள கருத்தை அறிந்து கொண்டு அவன் திருநாமங்களே சொல்லிக்கொண்டு வேற எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் ரட்சிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தாலே போதும். இத்தகைய நீர்மையில் ஏற்றமுடையவன் தன் மகளை நினையாது எதற்கு என்றே தாயார் பாசுரமாக அமைந்துள்ளது இந்த இடத்தில் திருமங்கையாழ்வாரின் பாசுரம். இத்துணை ஏற்றமுடைய திருமலை, இதில் நித்தியம் உரையும் பேசும் தெய்வமாக இருக்கும் திருவேங்கடமுடையான். திருவேங்கடமலைக்கு ஒரு ஒப்பான க்ஷேத்திரம் பிரம்ம சிருஷ்டியில் இல்லவே இல்லை என்பது வேதத்தில் உள்ள கருத்து. வேங்கடவனின் இணையான தெய்வமும் இல்லை, இனி உண்டாகப் போவதும் இல்லை. ஏனெனில் பகவான் வேங்கடவாணன் உகந்து எழுந்தருளிய தலம், அவனை மீறி எதுவும் நடந்தேறாது. அவனது ஆட்சிக்குட்பட்ட தலம் இந்த தலம். நைமிஷாரண்ய வனத்தில் சூத மகர்ஷி சௌனகாதி முனிவருக்கு உபதேசித்தது. 108 திவ்யதேசங்களில் ஸ்ரீமுஷ்டம், தோத்தாத்ரி, வெங்கடாச்சலம் என்னும் 8 முக்கிய திருப்பதிகளில் வெங்கடாச்சலம் என்னும் இந்த திவ்யதலம் எல்லாவற்றினின்றும் மேன்மை பெற்று இன்றளவும் விளங்குகின்றது. சித்தி ஸ்தலமாக ரிஷபாச்சலம், அஞ்சனாச்சலம், சேஷாச்சலம், வெங்கடாச்சலம் என்று 4 வித திருநாமங்களால் விளங்குவதாக புராணத்தை விரிவாக சூத மகர்ஷி உபதேசித்து அருளியுள்ளார். 3 லோகங்களிலும் மேன்மையான இந்த திருமலை மிகுந்த உயர்ந்த புண்ணிய ஸ்தலம் ஆனபடியாலே இதை பிரதட்சணம் செய்பவர்களுக்கு உயர்ந்த நற்பலங்கள் ஏற்படும். ஏன், கண்ணால் கண்டாலே போதுமானது. அந்த வேங்கடவாணனின் திருவடி இடைகளை பிரார்த்தித்தாலே போதும். இந்த தலம் ஆதி வராக க்ஷேத்திரமாகும். இங்கு எழுந்தருளியுள்ள லக்ஷ்மி வராக பெருமாள் பக்தர்களின் விரோதிகளை அழித்து பக்த ரட்சகராக எழுந்தருளி அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். ஏன், வராக பெருமாளை செவித்தால் எதிர்காலத்தில் வளரும் பாலகர்கள் நன்றாக கல்வி அறிவில் சிறந்து விளங்குவார்கள். அனைத்து ஞானம் முற்று நன்றாக இருக்கும். படிப்பு விஷயத்தில் வேற விஷயத்தில் ஞானம் வளராது. குழந்தைகளுக்கு நன்றாக கல்வி அறிவு வர வேண்டும் என்றால் இந்த வராக பெருமாளை லக்ஷ்மி வராகனை நன்றாக பிரதட்சணம் செய்து சேவித்தாலே போதும். அந்த குழந்தைகளுக்கு நீண்ட ஆயுளும் சிறந்த அறிவும் விளங்கும் என்பதே ஆழ்வார்களின் கருத்து. பகவான் பூதேவி தாயாரை கவர்ந்து சென்ற ஹிரண்யாட்சனை அழித்து ஸ்ரீ பூதேவி தாயாரை ரட்சித்தான். ஸ்ரீ வரகா பெருமான் பக்ஷிராஜனான கருடனை ஏவி ஸ்ரீவைகுண்டத்திலிருந்து கிரீடாச்சலம் என்ற இந்த மலையை கொண்டு வரச் செய்து இப்பூமியில் வைத்து அப்பர்வதத்தின் மேல் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி வராக பெருமானாக ஞானக்காரனாக இன்றும் நித்திய வாசம் செய்து கொண்டிருக்கின்றான். இத்தகைய வராக க்ஷேத்திரத்தை தேடி இடம் பிடித்து எழுந்தருளியுள்ளவன் நம் கோவிந்த கோபாலன். இத்தகைய ஏற்றமுடைய திருவேங்கடத்தை சுவாமி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் குன்றவேந்தி குளிர்மழையை காத்தவன். அன்று ஞானம் மலர்ந்த பிரான் பரன் சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொழ நம்வினை ஓயுமே ஓய்வி. நம்முடைய வினை ஓய்வதற்காகத்தான் இப்பொழுது நாம் கண்கூடாக காணும்படியாக இந்த வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் நமக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது. திருமாங்கல்யத்தை நன்றாக சேவித்துக் கொள்ளலாம். இந்த திருமாங்கல்யத்தை எம்பெருமான் திருவடி வாரத்தில் சமர்ப்பித்து அதற்குரிய கிரமங்களை வைக்கானச ஆகம முறைப்படி சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த அர்ச்சக சுவாமி. மேலே தாயார் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பிறகு பூதேவி தாயாருக்கும்
அணிவிக்க இருக்கின்றான். எம்பெருமான் பட்சத்தில் எம்பெருமான் செய்வதாக கிருஷ்ண அதாவது எம்பெருமான் கிருஷ்ண அவதாரத்தில் ஆய்ப்பாடியில் ஆயர்களாகவும் பசு கன்றுகளுக்காகவும் கோவர்த்தன மலையை குடையாக தாங்கி குளிர்ந்த பெருமழையை தடுத்தவனும் திருவிக்கிரம அவதாரத்தில் உலகங்களை அளந்த பிரபுவுமாகிய கண்ணன் இந்த கருந்தெய்வம் கலியுகத்தில் வந்து சேர்ந்த இடம் இந்த திருமலை. மன்னிக்க வேண்டும். கலியுகத்தில் இந்த கண்ணன் என்னும் கருந்தெய்வம் வந்து சேர்ந்த இடம் திருமலை. இந்த திருமலை ஒன்றை தொழுதாலே போதுமானது. அத்தனை ஏற்றமுடையது இந்த திருமலைக்கு. ஏனெனில் இவ்விடத்திலே அலர்மேல் மங்கை தாயாரும் பத்மாவதி தாயாரும் எம்பெருமானும் ஓடி திரிந்த ஸ்தலம் இது. ஆகவே இதற்கு ஏற்றமுடையது. மற்றொன்று, இவ்விடத்திலே திருமலை, மத்தியத்திலே அகோபிலம், அதன் வால் பகுதியிலே ஸ்ரீசைலம் என்னும்படியான திவ்யதலம். ஆகவே இந்த மலையை தொழுதாலே 3 இந்த க்ஷேத்திரத்தை சேவித்ததற்கு ஒப்பாகும். பக்தர்களின் வினைகள் யாவும் தொலைந்துவிடும். இதுவே ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ளது. திவ்ய தம்பதிகளின் திருவடி இணைகளை பற்றினால் ஒழிய நம் வினை ஓயாது. மேலும் இதை விளக்கும் முகமாக சுவாமி நம்மாழ்வார் கையார் சக்கரத்து என் கருமாணிக்கமே என்றென்று பொய்யே கைமை சொல்லி புறமே ஆடி பொய்யே பெற்றொழிந்தேன் விதி வாய்க்கென்று காப்பாரார் என்றார். மேலே திருமாங்கல்ய தாரணம் நன்றாக சேவித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷகஹேதவே கண்டே பத்ராமி சுபயே சாஜீவ சரதசதம். श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. सुप्रतिष्ठितमस्तु. यथे पौत्रमगन्नरोधात् स्वाहा. इमं मे वरुणस्तुति हवमत्याच प्रणया तामवस्युनाजगे स्वाहा. तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्दमानसनाशास्ते इदमानो हविर्भिः
अहेडमानो वरणेह बोदृशकं समान आज प्रमोषि स्वाहा तन्नो अग्ने वृणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वजासनिष्ठाः यजुष्टो वह्नितमस्सोषिडानो विश्वान् द्वेषागं से प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्पन्नो अग्ने मम भवते नेतिष्ठो अस्यापुषरो व्यष्ट अपजिक्मणो वरणगं रणानो वेहिमृडेकं सहमोनयेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा हितः अयासन हव्यमोहिडे जानो देहिमेषडग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अतिदेन्ममग्गुस्थाः अनमदेन्ममग्गुस्थाः सरस्वतेन्ममग्गुस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्तगपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निक्रमणे औपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अतितेन मन्यस्वा अनमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाभुतत्वया वयं धाराबुदन्या इवा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममग्गुस्थाः नमदेन्ममग्गुस्थाः सरस्वतेन्ममग्गुस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्चक्रमणि सर्वप्रायश्चित्तार्थम् औपासनाग्नौ अतो देवादिशत्वैष्टमहोमं करिष्ये दितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यदा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेवनं समूढमस्यमागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो क्रमान् पश्यतगतो व्रतानि पुष्पहे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे विचक्षणादरग् स्वाहा तद्विप्राशोऽपि वन्यमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममग्गुस्थाः अनमदेन्ममग्गुस्थाः सरस्वतेन्ममग्गुस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्तगपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्चक्रमणि औपासनाग्नौ क्रमसात् पुण्यार्थं वपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा यदस्य कर्मणोऽतिरेरचं यत्वान्योनिमिहाकरम् अग्निस्स्पृष्टकृद्विद्वान् सर्वग्रस्पृष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते हुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः आर्जातवेदावितर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात्मनिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषडन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समदशतेजोषितेजोमयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तरिक्मा सप्तारुषाय सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यदन्त सप्तयोनिरावृत्वाकृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् निष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं
वेदभक्तं जौर्भक्तं पृथ्वी भक्तं वोषाधे वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तं अग्निजैनं वेदजैनं जौर्जैनं पृथ्वी जीर्णं वोषाधे वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्तां बर्हिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभागच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवी तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाध्ये वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणरपितरपितामह प्रपितामह साक्षयमस्तृप्यन्तामदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वं मे भूयात् स्वाहा आक्षितमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः वरिष्ठाकक्वरेष्ठोऽग्रं वचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं लिखितं माजी एकव्रतमत्र मेधां पुष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुभुत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषाधयो मरुतां पृषतयस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्नेः कस्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् अपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः उशतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं वर्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मि भूयासं मय मेधामय प्रजां यज्ञस्तेजोदधातमय मेधामय प्रजां मयिन्द्र इन्द्रयन्द्रधातमय मेधामय प्रजामय सूर्यो भ्राजोदधातमन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाजिक्रन्तमया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तानि यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्म कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत्कलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्रघ्याजमणीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि गुणोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्सभारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु காரணமான பிற்பாடு மணமக்கள் தேங்காயை உருட்டும்படியான இந்த கிரமத்தை இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி செய்ய இருக்கின்றார். அதாவது திவ்ய தம்பதிகள் திருமணத்திற்கு பிறகு மாங்கல்ய தாரணத்திற்கு பிறகு தேங்காய் உருட்டும்படியான இந்த கிரமத்தை அர்ச்சக சுவாமி நமக்கு செய்து காட்டப் போகிறார். அதற்கு முன்னம் இவ்விடத்தில் எழுந்தருளப் போகிறார். இப்பொழுது சுவாமி நம்மாழ்வாரின் பாசுரத்தில் உள்ள அர்த்தத்தை அந்த சற்றே சேவிப்போம். கையார் சக்கரத்து என்ற கர்மாணிக்கமே என்ற பாசுரத்தின் பொருள், பகவான் எண்ணும்படியாக வஞ்சக புத்தியோடு நாம் நடித்து கொண்டிருக்கிறோம், நாம் நல்லவர்கள் பக்தர்கள் என்றுபடியாக அதை பொருட்படுத்தாது மெய்யென்று நினைந்து திவ்ய தம்பதிகளின் காருண்யமாகிற சமுத்திரம் கரை புரண்டு வந்து பக்தர்களை ரட்சிக்கின்றது. இதைத்தானே ஸ்ரீராமனும் சொன்னது. கடற்கரை வார்த்தையாக
మిత్రభావేన సంప్రాప్తం న త్యజేయం కథంచన தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதாம் ஏதத் அஹர்கிதம். ஒருவர் நட்பு கொண்டவன் போல் நடித்து தன்னை ரட்சிக்கும்படியாக சரணடைந்தால் கூட அவர்களை ரட்சித்தே தீர்வேன் என்று உறுதிபட கூறினவன் இந்த ராமபிரான். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி மாலை மாற்றல், அதாவது எம்பெருமான் திரு வெங்கடவாணன் அணிந்து கொண்ட அந்த மாலையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு அதை பூதேவி தாயாருக்கும் இந்த மாலை மாற்றலும், மாலை மாற்றலுக்கு பிறகு தலம்பராலு என்னும்படியான அட்சதை பரிமாற்றமும் இவ்விடத்தில் அர்ச்சக சுவாமி நமக்காக செய்து காட்டு கொண்டிருக்கிறார். இதை அத்தனையும் மங்கள கிரமமாக இப்பொழுது வேறு எந்த எண்ணமும் நினைக்காது தங்களின் அதாவது வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றி தரும்படியாக இந்த திவ்ய தம்பதிகளை சரண் அடைந்து நன்றாக பிரார்த்தித்து கொள்ள வேண்டும். வேற எந்த எண்ணமும் கூடாது. நாவினால் நாவு பெற்ற நன்மை அடைவதற்கு கோவிந்த நாமத்தை ஒன்று சொன்னாலே போதும். இந்த பாசுரங்களோ வேத வாக்கியங்களோ இது சூக்தங்களோ என்று சொல்ல வேண்டியது இல்லை. அதை உங்களுக்காகவே அடியேன் இவ்விடத்தில் பிரார்த்தித்து கொண்டிருக்கிறோம். நீங்கள் மட்டும் மனதால் மட்டும் நினைத்து அந்த கோவிந்த நாமத்தை சொல்லி உங்களின் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றி தர பிரார்த்தித்தால் போதும். அத்தனை எளிமையுடையவன் இந்த வெங்கடவாணன். ராமனாகவோ கிருஷ்ணனாகவோ அவதரித்தது இதற்காகத்தானே. இப்பொழுது நாம் கண்டு கொண்டிருப்பதும் அதற்காகத்தான். வேண்டுதல்களை பெற்று மங்களமாக வாழ வேண்டும். அதுதான் இவ்விடத்தில் சொன்னது ராமன். மித்திரபாவேன சம்பிராப்தம் ந த்யஜேயம் கதஞ்சன. அப்படி சரண் அடைந்தால் கூட உன்னை சரண் அடைகிறேன் என்று மேலோட்டமாக வெறும் வார்த்தையாக சொன்னால் கூட உடனே ரட்சித்தருள்வான். இப்பொழுது மேலே திவ்ய தம்பதிகள் சேர்த்தியிலே தலம்பராலு என்னும்படியான அட்சதை பரிமாற்றம் அது அர்ச்சக சுவாமி செய்ய இருக்கின்றார். எத்தனை பக்த கூட்டங்கள், இத்தனை கோடி கூட்டங்களை நாம் சேவித்தாலே போதுமானது. இத்தனை பக்தர்கள் இதை பின்பற்றி கொண்டு நாமும் நன்றாக பிரார்த்தித்து சேவித்து எழுந்த அனைத்து பலன்களையும் மங்களமாக பெற்று வாழ வேண்டும். கல்யாணானாம் அவிகல நிதிஹி காபிகாருண்ய சீமா நித்யாமோதா நிகமவச்சசா மௌலிமந்தாரமாலா சம்பத்திவ்யா மது விஜயரக சந்நிதத்தாம் சதாமே சைஷா தேவி சகல புவன பிரார்த்தனா காமதேருவாக இருந்து இது ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராக பகவான் அனைவருக்கும் அனைத்து மங்கள பலன்களையும் தந்து மேலே மங்களங்களை வரும் காலங்கள் வரும் புது வருஷங்களிலே நன்றாக என்னை பற்றி விளங்க எம்பெருமான் நன்றாக அனுகிரகிக்க வேண்டும். இப்பொழுது தலம்பராலு என்னும்படியான పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.